لہو ہے جو شہید کا وہ قوم کی میراث ہے۔ آج کی 6 ستمبر کے حوالے سے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر سے اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہوں گا، اور آج کے دن کی مناسبت سے پورے ملک میں اس وقت جو ہمارے نمائندگان موجود ہیں وہ ہمیں لمحہ لمحہ کی خبریں بھیج رہے ہیں، میں اپنے ناظرین سے شیئر کرتا چلوں گا۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے سکرینٹ سے، جہاں ملک بھر کی طرح یوم دفاع کے حوالے سے سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس میں مختلف تنظیموں کے رہنما اور صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ رگز نیوز اصغر علی سے۔ جی اصغر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، آپ کو بتاتا چلوں کہ سکرینٹ NPCIH کی جانب سے 6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں مختلف تنظیموں کے رہنماؤں اور صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار کو NPCIH کے مرکزی چیئرمین علی شاہ راشدی نے خطاب کرتے کہا کہ ملک کی خاطر پاکستان آرمی کے جوانوں نے بڑی تعداد میں قربانیاں دی ہیں، اور 1965 والی جنگ میں بھارت کو پاک آرمی نے بھرپور جواب دیا تھا، اور اب بھارتی حکومت مذہبی جنونیت پر اتر آئی ہے اور سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کی جا رہی ہے، اسے فی الفور بند کیا جائے، اور سی پیک کے آنے سے ملک ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اس موقع پر چیئرمین NPCIH سید علی شاہ راشدی، ایڈوکیٹ سکندر علی کیرو، علی شیر کیرو، طارق راجپر، اصغر مگسی اور دیگر شامل تھے۔ جی بہت شکریہ اصغر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ جی بالکل حماد، جیسے پورے ملک میں یوم دفاع کے موقع پر مختلف شہروں میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا، تو اسی حوالے سے میں بلوچستان سے ایک خبر شامل کرنا چاہتا ہوں۔ بلوچستان کے شہر اوستا محمد کی، جہاں ملک بھر کی طرح 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے سلسلے میں سادات قومی اتحاد پاکستان سنی تحریک اور دفاع اہل سنت کی جانب سے اوستا میں ریلی نکالی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز ارشاد علی ناوڑا سے۔ جی ارشاد، آگاہ کیجیے گا اس ریلی کے حوالے سے۔ جی اب خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر اوستا محمد کی، جہاں ملک کی طرح 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے سلسلے میں سادات قومی اتحاد پاکستان سنی تحریک و دفاع اہل سنت کی جانب سے اوستا محمد میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی سید راجن شاہ سے شروع ہوئی، جو شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی UBL چوک پر جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی۔ ریلی کی قیادت سادات قومی اتحاد کے سید ذوالفقار علی شاہ اور پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما محمد علی جتک کر رہے تھے۔ UBL چوک پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے شہداء 6 ستمبر کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ انہی شہداء کی وجہ سے آج پاکستان آباد و شاداب ہے۔ پاکستان کو جب جب مٹانے کی کوشش کی گئی، ایسے ہی ہمارا مضبوط اور خوشحال ہوگا۔ انشاءاللہ آگے چل کر کشمیر بھی آزاد ہوگا اور ہمارے کشمیری بھائی آزاد زندگی گزاریں گے۔ یوم دفاع کے جلسہ سے سید ذوالفقار علی شاہ، محمد علی جتک، ڈاکٹر سکندر علی بھٹی نے خطابات کیے۔ ریلی اور جلسہ میں شرکا نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے۔ جلسہ کے آخر میں سید ذوالفقار علی شاہ کی جانب سے پاکستان کی سلامیت، شہداء پاک فوج اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ ریلی کے سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات سٹی پولیس نے کیے تھے۔ بہت شکریہ ارشاد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ پورے ملک کی طرح ٹھری میرواہ میں بھی 6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے دن منایا گیا۔ پاکستان زندہ باد آرگنائزیشن ٹھری میرواہ کے عہدیداران کی جانب سے ریلی نکالی گئی، پاک فوج اور شہدائے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ اس حوالے سے مزید ہم جانتے ہیں نمائندہ رگز نیوز زوار حسین لگاری سے۔ جی زوار، آگاہ کیجیے ہمیں، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پوری ملک کی طرح ٹھری میرواہ میں یوم دفاع کے حوالے سے پاکستان زندہ باد آرگنائزیشن کے عہدیداروں کی جانب سے ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی میں بڑی تعداد میں شہریوں اور صحافیوں نے شرکت کی ہے۔ ریلی میں شریک ذوالفقار علی جوگی، علی اصغر دشتی، محمد اقبال سومرو، ممتاز علی شر اور دوسروں نے شرکت کر کے پاک فوج زندہ باد کے زوردار نعرے لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی خدمات جو عوام کے لیے، ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ زوار ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ جی بالکل اکمل، جس طرح سے ہم لوگوں نے اپنی ٹرانسمیشن کے پہلے حصے میں ذکر کیا بلوچستان کے حوالے سے کہ جب بھارت نے بلوچستان پر حملہ کیا تو بلوچستان سے جو ہمارے فرنٹیئر تھے ان میں ایک نام جس کا ہم نے ذکر کیا تھا حولدار اسماعیل،
उसी हवाले से अब मैं एक ख़बर अपने नाजरीन से शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे इस वतन अजीज़ के एक और जांबाज सपूत की कि पाक अफवाज के जवानों ने 6 सितंबर को बहादरी और शुजाअत की दास्तान रकम की, मुल्क के दिफा को यकीनी बनाया। सरजमीन बलोचिस्तान के जवान लास नाइक शहीद वली मोहम्मद खोसा ने अपनी जान का नजराना पेश करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया है। इस हवाले से देखते हैं सिब्बी से ज़हूर अहमद की रिपोर्ट। अपनी जान नज़र करूं, अपनी जान नज़र करूं, अपनी वफा पेश करूं। 6 सितंबर के शोधा की तारीख को जिंदा रखते हुए सरजमीन बलूचिस्तान के सबूत शहीद वली मोहम्मद खोसा ने 26 दिसंबर 2004 में वाना वजीरिस्तान में शकनी सेक्टर के मकाम पर दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया और सरजमीन के दिफा को यकीनी बनाया। भाई पे बहुत बड़ा फ़ख्र है जो इसने मुल्क के दिफा के लिए शहादत पेश की, और हमारा भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं जो है आर्मी ऑफिसर बन के शहीद होऊंगा इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह हमारे भाई पे फ़ख्र है हमें। पाक फौज के शोधा की कुर्बानी के बाइस आज हम एक आज़ाद और पुरसकून माहौल में अपने मामूलात ज़िंदगी चला रहे हैं, लेकिन शोधा के अहले खाना आज भी अपने प्यारों की शहादत पर नाज़ा हैं और मुल्क के दिफा को यकीनी बनाने के लिए पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े होने के लिए पुरअज़म है। बहुत ही फ़ख्र है कि हमारे भाई ने अपनी जान इस मुल्क के लिए कुर्बान की है और शहादत का रुतबा हासिल किया है, और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम एक शहीद फ़ौजी की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे अंदर वो जज्बा पैदा हो गया है कि हमारे घर का बच्चा किसी भी दुश्मन से किसी टाइम भी लड़ने के लिए तैयार है और अपनी जान देने से भी दरेक नहीं करेगा इंशाअल्लाह। यकीनन शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज भी मौजूदा दौर में सरजमीन खुदादाद को बैरूनी और अंदरूनी चैलेंज का सामना है। पाक अफवाज समेत सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान सरहदों पर मुस्तैद हैं। फखर सिपी शहीद वली मोहम्मद खोसा जैसे हजारों जवान आज भी मुल्क के दिफा के लिए पुरअज़म है, जिस पर पूरी कौम को नाज है। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ ज़हूर अहमद, RNN न्यूज़ सिबी। अपनी इनायत रखे उम्र भर। खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से, जहां मुल्क भर की तरह यौम दफा इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर की मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली गई। इस मौका पर मुकर्ररीन का शुरा से खिताब। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ मुमताज़ अली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा कि मुकर्ररीन का क्या कहना था शुरा से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह नवाबशाह में भी योम दिफा इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर की मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों की जानब से रैलियाँ निकाली गईं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई प्रेस क्लब पर पहुँची। इस मौके पर मुकर्ररीन का शुरा से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान का हर फर्द वतन अजीज़ के दिफा के लिए पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ा है और हमारा सब कुछ मुल्क पाकिस्तान की सलामती और हिफाजत के लिए कुर्बान है। मज़ीद इनका कहना था कि मादर वतन पाकिस्तान की सलामती और दिफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके खुद को एक जिंदा कौम साबित करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़, हमें तफसीलात से आगाह करने का। मुल्क भर की तरह कोहलू में भी यौम दफा के तकरीबात का एहतमाम हुआ। इस हवाले से FC बलूचिस्तान और लिविस फोर्स ने शोहदा की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई और चाको चौबंदस्तों ने शोहदा को सलामी भी दी। मजीद बता रहे हैं कई उमरी अपनी इस रिपोर्ट में। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। FC माउन राइफल की जानिब से लेफ्टिनेंट शहीद जहांगीर मरी की कब्र पर हाज़री दी गई और सलामी पेश की। कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी भी की। इस मौके पर सियासी पार्टियों और कबायली रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद के अहले खाना का कहना था, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हमारा बेटा वतन अजीज़ पर कुर्बान हुआ। हमें फ़ख्र है इस बात पर कि बेटे ने वतन अजीज़ की खातिर जाम शहादत नोश की। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर कोलू की खुसूसी हिदायत पर मेजर रसालदार शेर मोहम्मद ने लेविस फोर्स के जवान जो वतन अजीज़ पर कुर्बान हुए उनके कब्रों पर भी हाज़री दी गई और सलामी पेश किया। कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। शहीद के अहले खाना में राशन भी तकसीम किया गया। कैमरा टीम के हमरा कयूम मरी, RNN न्यूज़ कोलू।
खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां मुल्क भर की तरह यौम दफा पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे और पुरअज़म के साथ मनाया गया। अवाम ने 1965 की जंग में पाक फौज के जज्बे और जुर्रत व बहादुरी के हवाले से RNN न्यूज़ से अपने ख्यालात का इजहार किया। इस बारे में रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ तसव्वुर मलिक। जी तसव्वुर मलिक, आगाह कीजिएगा, अवाम की क्या राय है इस हवाले से? जी बिल्कुल, हम इस वक्त रावलपिंडी में कलमा चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि हमारे साथ अवाम की काफ़ी तादाद मौजूद है और हम इनसे पूछते हैं कि जो यौम दिफा पाकिस्तान वो क्यों मनाया जाता है और 6 सितंबर में यौम दिफा के हवाले से 6 सितंबर में पाक फ़ौज का क्या किरदार था। जी और हमारे साथ इस वक्त एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि ये बुज़ुर्ग शहरी जो हैं ये ऐनी शाहिद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से 1965 की जंग का जो हालात जो थे वो देखे थे। तो जी बताइए आप, जी आपका नाम क्या है? जी शाहजहान नाम है जी। शाहजहान बाबा जी, आप कहाँ से हैं? बिल्कुल जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किधर से हैं आप? ये हम पेशावर से हैं और अरबाब लंडी के करीब हमारे जो है ना मकानात थे। किस जगह पर? अरबाब लंडी पेशावर। अरबाब लंडी पेशावर में, अच्छा जी। वहाँ से जो है ना हमारे करीब मकानात थे, तो बल्कि हमारे बड़े भाई जो है ना वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो खुद भी सनपैन के जंग में गए थे। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और दूसरे नंबर है कि ऐसे ही जो है ना रात के टाइम तक कि जहाज़ आ गए 3, जब जहाज़ आ गए तो बिल्कुल करीब थे और उन लोगों ने कोई लेट किस्म का फेंका, जब लेट फेंका तो बहुत लेट उससे बन गए, बहुत बड़ी रोशनी हो गई। इंडियन जहाज़ थे, इंडियन जहाज़ जब वो पाकिस्तान के हदूद में आ गए जी, तो जब उन लोग लैंड फेंकी उससे छोटे छोटे काफ़ी लाइट बने और फिर हमारा जो तोपची बैठा हुआ था एयरपोर्ट पे, वहाँ से जैसे ये लाइट बने वहाँ से पहला बार से उनको हटा दिया, मार दिया। फिर ये जहाज़ जो आगे चले ना अरबाब लंडी की तरफ से, आवाम ने मशीन गन नहीं होते, मशीन से पैर की, फिर इसने जो बम फेंका तो वो एक मस्जिद के तालाब में गिरा और फिर जो आबादी से ज़रा जो ये इंडियन के जहाज़ निकल गए ना, फिर पाकिस्तानी बंदों ने जो है ना जहाज़ों ने उनको पकड़ के जंगल की तरफ जो है ना मरवा और गिरा दिया। तो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी का तो पूरा दुनिया में जवाब नहीं है। और दूसरे नंबर है कि वो जंग भी सनपैन का जंग हर एक को याद है, बल्कि पूरा दुनिया को याद है कि भाई किस तरीके से इंडिया को शिकस्त दी थी। और अभी भी इंशाल्लाह पाकिस्तान हाल वर्ल्ड में जैसे पाकिस्तान का आर्मी एक नंबर पे पूरा दुनिया में, ऐसा पाकिस्तान का कौम आर्मी के साथ और दीन इस्लाम के लिए और अपने मुल्क के लिए हर किस्म कुर्बानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। और इसके अलावा हमारे साथ एक और हमारे शहरी यहाँ मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से यौम दिफा के हवाले से क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज का क्या किरदार था 65 की जंग में। जी आपका नाम? नफीस अकरम। जी नफीस साहब, आप ज़रा बताइएगा। हम इस 6 सितंबर को एक यादगार के तौर पर मनाते हैं। अक़वाम आलम में, अक़वाम मुत्तहिदा में जितने भी मुल्क हैं सब में 6 सितंबर पाकिस्तान को एक सुनहरी हरूफ के साथ देखा जाता है और लिखा जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद ही रहेगा। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदा रहेगा, ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगा इंशाल्लाह। जैसा कि बिल्कुल और इसके अलावा मैं पाकिस्तानी फ़ौज ने 1965 की जंग में जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा किया। उसमें खा पाकिस्तान एयर फोर्स है, खा पाकिस्तान बरी फ़ौज है, खा पाकिस्तान नेवी फ़ौज है, उसके हवाले से चुविंडा के महाज पर जैसा कि हमें पता है कि 500 टैंकों के साथ इंडिया ने जो था कि वो पाकिस्तान पर अटैक किया था सियालकोट बॉर्डर से, और पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी सिविलियन जवानों ने मिलकर जो है अपने जिस्म के साथ अपनी बॉडी पर बमों को बांध कर जो वो टैंकों के नीचे, टैंकों के सामने लेट गए थे और उनके सारे के सारे तमाम के तमाम टैंक तबाह बर्बाद कर दिए थे। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हमेशा सलामत रहेगा और सलामत रहने के लिए ही और कायम रहने के लिए ही बना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। जी मुल्क भर की तरह खैरपुर में भी 6 सितंबर का दिन बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहिब वतन ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनों ने सिविक सेंटर से लेकर प्रेस क्लब खैरपुर तक रैली निकाली। मजीद इस हवाले से जानते हैं खैरपुर से नुमाइंदा रग्स न्यूज़ सुदूरू लाशारी से। जी सुदूरू, आगाह कीजिएगा हमें इस हवाले से।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जो है आज खैरपुर में भी जो है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन की तरफ से सिविक सेंटर से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में शुरका ने पाक फ़ौज की हिमायत में नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज को हम सलाम पेश करते हैं और उन शहीदों और उन जवानों को खराज तहसीन करते हैं पेश जो हमारे मुल्क और मुल्क की सलामती के लिए जिन्होंने जान का नजराना दिया। और उनका मज़ीद ये भी कहना था कि हम ऐसे गाजियों को भी सलाम करते हैं जो शहीद हो गए और अपने मुल्क और मुल्क की बका के लिए उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। और उनका ये कहना है कि हम सलाम उनको भी करते हैं, उन जवानों को जो हमारे पाक फ़ौज के जवान हैं जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, रात दिन हमारे मुल्क की दिफा के लिए बैठे हैं। और उनका ये कहना था कि हमारी फ़ौज एक बहादुर और एक दिलेर फ़ौज है जो कि दुश्मन का मुकाबला करना जानती है और दुश्मन ने ऐसी कोई भी हरकत की तो हम अपनी फ़ौज पे एतमाद करते हैं कि दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देगी और दुश्मन को ऐसा सबक देगी कि दुनिया के लिए एक मिसाल पैदा होगा। और हम पाक फ़ौज के जवानों को और सब जो हमारे जवान शहीद हो गए सबको खैराज तहसीन पेश करते हैं। जी बहुत शुक्रिया सुदूरू हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अब रुख करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी का, जहां 6 सितंबर यौम दफा के मौका पर मिली मुस्लिम लीग की जानिब से सिब्बी शहर में तारीख में पहली दफ़ा 650 फुट का कौमी परचम को शहर में मुख्तलिफ शहरों पर मार्च कराया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ ज़हूर अहमद से। जी ज़हूर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह आज सिब्बी में भी 6 सितंबर यौम दिफा मनाया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मिली मुस्लिम लीग की जानिब से भी आज 650 फुट का बड़ा कौमी परचम जो है मुख्तलिफ शहरों पे उसका मार्च कराया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर मिली मुस्लिम लीग के चेयरमैन सलीम मर्दानी साहब मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं इस हवाले से ये क्या कहते हैं। जी कहिएगा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये शुक्रगुज़ार हूँ अपनी जमात का, सिब्बी की आवाम का। आज 6 सितंबर है। 6 सितंबर मनाने का मतलब है कि हम अपने पाक फ़ौज के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं और हमें दिफा करना जानते हैं, क्योंकि हमने हमेशा अपनी जान के नजराने पेश किए हैं। और हमारी जमात का हमारा असल सियासत से समझे कि इंसानी खिदमत है। और सिब्बी की तारीख़ में 650 फुट का ये परचम लहरा कर हमने ये साबित कर दिया कि हम कितने मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही हम हमेशा मरते दम तक अपने पाकिस्तान पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि हम लोगों ने 650 फुट का जो कौमी परचम है वो लहरा कर साबित कर दिया कि हम लोग कितने मुहिब वतन है। और इसके अलावा इनका ये कहना है कि हमारा जो बच्चा है वो पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। जी रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर सतारा इम्तियाज की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 की जानिब से यौम दफा के हवाले से एमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशंस गुलाम शब्बीर की क़यादत में रेस्क्यू 1122 के दस्ते ने पाकिस्तान आर्मी के शहीद कैप्टन उसामा की कब्र पर फूलों का गुलदस्ता और सलामी पेश की। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ मुनीब से। जी मुनीब, आगाह कीजिएगा हमें इस हवाले से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने अपने पैगाम में कहा कि शहीदा हमारे सर का ताज हैं और हम इन्हें नहीं भूले। और आज का दिन हम ये अहद करते हैं कि जब वतन अज़ीज़ को हमारी ज़रूरत हुई तो हम अपनी जान का नजराना पेश करने से गुरेज नहीं करेंगे। आखिर में शहीदा के लिए खसूसी दुआएं की गई। एमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशन गुलाम शबीर ने कहा कि रेस्क्यू 1122 के जवान जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं और किसी की भी जान बचाने के खतरात से खेल सकते हैं। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रेस्क्यू एहलकार जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया, इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और इनके वालिदैन को सब्र व जमील अता करे। जी बहुत शुक्रिया मुनीब हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अच्छा अकमल, यहाँ पर मैं अपने जो हमारे देखने और सुनने वाले हैं मैं उनसे एक बात करना चाहूँगा। जैसे कोई भी दिन हो, हम कभी भी अपने कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं बोले और हमें बोलना भी नहीं चाहिए। और इस अगर हमें चाहिए कि अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और अगर बात कर सकते हैं तो हम अपने उन बहन भाइयों के लिए ज़रूर बात करें। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे उन
मज़लूम भाइयों को, उन बहनों को और जितने भी कश्मीरी मुसलमान इस वक्त भारत के जुल्म सितम से तंग आ चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद करे और जहाँ तक हो सकेगा पाकिस्तान की जो अवाम है और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं और पाकिस्तान की हुकूमत हमेशा अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। और इसी के साथ हमारी आज की जो खुसूसी ट्रांसमिशन थी दिफाई योम दिफा के हवाले से वो अपने अख्ताम को पहुँची। अल्लाह हाफिज़।